You guys must be wondering what I am doing, why I am so crazy to start something like this. And if you clearly observe, this is a motion which we used to call damped oscillation. Actually damped oscillation क्या था? एक फ्लैट ऑब्जेक्ट, उस फ्लैट ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ करके एक स्ट्रांग पोजीशन में और उसके बाद रिलीज किया है और उसके बाद ये कुछ मोशन कर रहा है. अगर यहाँ पर कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होते तो शायद इसका मोशन जो था वो ऐसे ऐसे और दिन भर ऐसे ही होता रहता. ऐसा मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है. ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन नेचर का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है. You will be surprised to know that each and everything around you which is solid is comprised of molecules, and those molecules are completely and always oscillating about their mean position. But oscillations amplitude is very small. छोटे amplitude होते हैं, मतलब ऐसा नहीं इतना ज्यादा ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है. मतलब जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके आसपास हैं, सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सब मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट कांप रहे हैं. ये कांपना जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन चलता रहता है. आई राकेश तिवारी वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फील द फिजिक्स विद मी along with exemplar point. Let's start our topic of discussion. Today we are going to discuss more details about an electric dipole. So what we are going to particularly discuss about? We are going to discuss about electric dipole when it is placed in uniform electric field, what kind of torque, force it is experiencing, and along with that what is the concept of potential energy and how simple harmonic motion just now I represented is executed in this dipole. So remember the image of the dipole: a positive charge, a negative charge, equal and opposite charge system separated by some distance. And always remember, chota dipole, sukhi dipole. So negative to positive is the direction of dipole moment, but in today's class we will be discussing how it executes SHM while it is placed in uniform electric field. What are the concepts behind it? Let's go through that. So students, coming to this very important topic, that how uniform electric field affects this dipole. We all are aware about the very important fact that a positive charge is always tries to go towards the direction of electric field, while the negative goes opposite to the direction of electric field. Same is the case with dipole as well. Let me assume this dipole with this system of minus q and plus q separated by some 2a distance. अब एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस प्लस q पर जो फोर्स लग रहा होगा, काइंडली फोकस ऑन दिस डियर स्टूडेंट्स, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, उस फोर्स को मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू क्यू ई, जिसका डायरेक्शन इस तरफ है. और इस वाले फोर्स पर अगर मैं ध्यान दूं जिसका इस तरफ डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई. मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर, वाओ, डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट. मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पर अगर मैं नेट फोर्स लिखने चलूं, नेट फोर्स, सो आई विल बी गेटिंग इट एज नेट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स 0. Undoubtedly, if net force is 0, the particular system is in translational equilibrium, यानी कि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा. और जब मैंने बात करी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा यानी आगे इधर उधर मूव नहीं करेगा, तो बात कर लेते हैं एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी. क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, पर आप देख रहे हैं एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ये है. जब डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन के अलोंग दो फोर्सेज एक्ट करते हैं तो वो बर्बाद नहीं होते हैं, उनका टॉर्क बन जाता है. हाँ, अगर ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट एक्ट कर रहे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ना इनका कुछ फोर्स बनता ना इनका कुछ टॉर्क बनता. फिलहाल इस केस में फोर्स तो नहीं है, बट इस केस में दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक टॉर्क. तो वो टॉर्क हम लोग कैसे फाइंड किया करते थे, वो हम पुरानी लेक्चर्स में या मतलब पुरानी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं. दैट टॉर्क वाज कैलकुलेटेड एज force into perpendicular distance. So if these are the two forces, the distance that is perpendicular would be this distance. This distance is obviously perpendicular. If this angle is theta, this distance is 2a, this angle is again theta, and this distance is 2a sin theta. So I would be representing it here as either force, कोई भी एक force, कोई भी फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोस फोर्सेस. सो इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, आई वुड बी राइटिंग इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस Q इंटू E, ईदर फोर्सेस, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है 2a sin थीटा.
लेकिन आप अपनी पुरानी बातें याद करें, आपको याद आ रहा होगा Q और 2a का प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट कहलाता था, यानी यहां पर टॉर्क हो चुका है P और E साइन थीटा, जिसको हम अपनी क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज से टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी आप लोगों को एक बात का अंदाजा मिल गया है कि इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क जो है वो P से E की तरफ है। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, these all are electric field lines, so P E, so thumb is going inward, इसका मतलब है कि into the plane of paper इस पर एक टॉर्क लग रहा है। तो ये तो बात हो गई फोर्स की, नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क इज P क्रॉस E, डाइपोल मोमेंट एंड electric field, cross product of both. Okay, now just because we have found out that what is the torque acting on this, and we have got the idea that if it is placed at certain angle, let me tell you, this is some angle, this is 0 degree and here it is some angle. When we place it at some angle, it would surely experience torque. वो torque यहाँ पर मैंने represent किया है। यानी इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएं तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि फोर्स तो नहीं है पर जस्ट टॉर्क है, यानी इसका मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल तो नहीं है पर रोटेशनल है, और जब भी रोटेशनल मोशन होता है यू ऑल आर अवेयर अबाउट कि उसमें फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का भी टर्म आ जाएगा। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं कि इसका चार्ज माइनस क्यू है मास m है और इसका भी चार्ज प्लस क्यू है मास m है, तो ऑब्वियसली मैं इसका अल्फा भी निकाल सकता हूं। तो आओ इसका अल्फा भी देखते हैं। तो अगर इसके अल्फा के ऊपर मैं बात करूं, टॉकिंग अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जो छोटी छोटी बातें मुझे पता है वो क्या है, मैं जानता हूं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। यहां पर टॉर्क क्या है, पीई साइन थीटा। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, दो मासेस जो 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, सेंटर के अबाउट अगर इसका ऑसिलेशन होगा, सेंटर के अबाउट अगर ये मूव करता है, ऑब्वियसली फ्री टू रोटेट है, कपल लगेगा, सेंटर के अबाउट ही रोटेट होगा इस टॉर्क की वजह से। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो m इंटू ए का स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज a, आप लोग समझ पा रहे होंगे, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m इंटू ए स्क्वायर प्लस m इंटू ए स्क्वायर इंटू अल्फा, यानी यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा Pe sin theta divided by twice of ma square. Here a is the distance of that mass from the center of the dipole. तो ये हो गया इसका angular acceleration. Once we got to know about angular acceleration, we can find out many things like that. आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, उसमें एक वैल्यू लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करूं, उसमें आपका टाइम बर्बाद करूं। आप खुद समझ गए, अगर डाइपोल मोमेंट पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कितने एंगल रोटेट किया गया है, मास और डिस्टेंस पता है, तो ऑब्वियसली इसमें वैल्यू सेट करके आप खुद ही आंसर ला सकते हैं। सो आई वुड नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। मैं आपसे कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की बात मैं कर रहा था, मैंने बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा डाइपोल में, उस पर बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल है, आप देख रहे होंगे इस डाइपोल को, मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखना है कुछ इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को इधर अलाइन कर चुका है, प्रॉपर्ली अलाइन कर चुका है, और अब जबरदस्ती अगर मुझे इसे मूव करना है तो अगेंस्ट दिस फोर्स जाना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको जबरदस्ती मूव करना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और अगर इस फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा तो मुझे इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑब्वियसली द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम। तो अगर इस सिस्टम की मैं बात करूं, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो मैंने यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं किया है, मैंने इसे रोटेट किया है, और अगर मैंने रोटेट किया है तो इसका वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों को बहुत क्लैरिटी है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क हम लोगों ने किया। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रल ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, वर्क डन जो है अगर केवल उसमें फोर्स लग रहा होता तो हम f डॉट dx लिखते, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस में मैं लिख सकता हूं वर्क डन इंटीग्रल, क्योंकि रोटेट करने के लिए टॉर्क लगता है, फोर्स यहां पर बात ही नहीं कर रहे हैं, रोटेट करने के लिए टॉर्क लगता है।
सो दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा। कुछ भी कोई इनिशियल कुछ एंगल ले लेता हूं, लेट मी अज्यूम जैसे ये इनिशियल एंगल था यहां से लेकर के और मतलब यहां तक ले जाना था मुझे उसे, पहले कुछ θ1 एंगल था, बाद में θ2 तक लेकर के जाना है, तो θ1 से θ2 तक के बीच में कितना वर्क किया वही जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो यहां पर θ1 से लेकर के θ2 तक मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूं। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि टॉर्क था PE sin थीटा, सो आई कैन इंटीग्रेट इट एज एंड राइट लाइक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि P और E जो है ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, P एंड E, तो मैं P और E बाहर लिख ले रहा हूं बच्चों और इंटीग्रल θ1 से θ2 तक कर रहा हूं। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं इसका इंटीग्रल क्या होता है, PE, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 θ2 obviously, and this comes out to be PE cos θ1 minus cos θ2, cos θ1 minus cos θ2. So this comes out to be the expression of potential energy stored in a dipole when it is slightly or when it is moved in or rotated in uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। मान लेते हैं अब इसी में आप लोगों को क्या बुक्स में मिलेगा या जनरली आप भी अपना आइडिया लगाइए कि अगर ये 90 डिग्री कर दें, अगर इनिशियली 90 डिग्री से हम मूवमेंट स्टार्ट करें, इनिशियल एंगल मैं अज्यूम कर लेता हूं, इफ इनिशियली जो थीटा था वो 90 था एंड बाद में जो थीटा हो गया, जैसे मैं θ2 बोल रहा हूं उसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम कर रहा हूं अपने मन से, थीटा मान लेते हैं, तो आप यही देखो cos 90 0 हो जाएगा। सो यही रिजल्ट आप लोगों को दिखाई देगा माइनस PE cos थीटा, जिसको आप सभी लोग जानते हो, आप लोग लिख सकते हो फाइनली इस रिजल्ट को आप लिख सकते हैं U इक्वल टू माइनस P डॉट E, क्योंकि cos थीटा जानते हो आप लोग, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा उसके अंदर मर्ज हो चुका है। तो आपने देखा किस तरीके से टॉर्क आया P क्रॉस E और पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E का नेगेटिव। अगर इनिशियली वो थीटा 90 डिग्री है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, अगर यहां पर जीरो है तब ये एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूं, वरना दिस इज द वंडरफुल एक्सप्रेशन दैट यू वुड बी यूजिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी एग्जाम, जो आपको पूरा लिंक करके देगा इसी को। आओ इसी के जरा मोशन पर अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ और आइडियाज मिल जाए। तो अब देखो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा एलैबोरेट करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें। जैसे क्या छोटी बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, ये एक सिचुएशन ले ली मैंने, सिचुएशन कंसीडर करते हैं, अभी एक सिचुएशन और ले ली मैंने, दो सिचुएशन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन। देखिए अब जरा, जो पहली सिचुएशन है और दूसरी, इन दोनों में डिफरेंस है। इस सिचुएशन पर फोकस कीजिए, और आप सोच रहे हो कि किस पर फोकस करें, क्या बता रहे हो गुरुजी, सही से बताओ। तो देखो फोकस हमें किस बात पर करना है, आप इस फील्ड पर फोकस करिए। दोनों ही आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दोनों में मैं जो डाइपोल को रख रहा हूं उस पर मैं आप लोगों को फोकस करने को कह रहा हूं। जो डाइपोल है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अगर आप डाइपोल पर थोड़ा सा फोकस करें, मैं एक केस में डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज यहां रख रहा हूं और नेगेटिव चार्ज यहां रख रहा हूं, और दूसरे केस में डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज यहां रख रहा हूं और नेगेटिव यहां। अब आप कहेंगे अंतर क्या है सर, दोनों में तो टॉर्क जीरो ही लगेगा, क्योंकि यहां साइन, यहां पर अगर आप देखो तो थीटा जो है यहां पर 180 डिग्री है, यहां पर अगर आप लोग देखो तो थीटा 0 डिग्री है। थीटा 180 हो चाहे थीटा 0, दोनों केसेस में साइन की वैल्यू जो होती है, साइन 180 एंड साइन 0, साइन दोनों ही 0 आते हैं, यानी कि इसमें भी टॉर्क 0 है, इसमें भी टॉर्क 0 है। सो आई कैन पर्टिकुलरली से दैट इन बोथ ऑफ देम देयर इज अ टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फोर्स 0 वो तो क्लियर हो गया हम लोगों को, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी यहां पर 0 हो गया है, इधर भी नेट फोर्स 0 और यहां पर भी नेट टॉर्क 0 हो गया है। इससे क्या समझ में आता है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। लेकिन इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप के हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल।
अब स्टेबल और अनस्टेबल में यहां फोकस अगर हम करें तो सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप सभी जानते हैं स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब होता है अगर आप उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करें अपनी मीन पोजीशन पर से, तो वो वापस अगर आने की कोशिश करता है तब तो स्टेबल हुआ, एल्स वो अनस्टेबल हो जाएगा। यानी उससे अगर दूर चला जाता है, पलट जाता है, या उस पोजीशन में नहीं आता है तो अनस्टेबल, पर अगर आ जाता है तो स्टेबल। अब इस चीज को आप यहां देखने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो मेरा पॉजिटिव वाला चार्ज ये है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और पॉजिटिव तो उधर जाने की कोशिश करेगा फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर हल्का सा भी इसे डिस्प्लेस करता हूं, अभी तो सब जीरो है, हल्का सा भी डिस्प्लेस कर देता हूं, पलट जाएगा, पलट जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें देखो अगर मैं इसे हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूं, ये पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव, हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूं तो डिस्प्लेस करते ही ये वापस इधर आने की कोशिश करेगा। लेकिन वही बात है जहां से मैंने बिगिन किया था, ये वापस इस पॉइंट पर रुकेगा नहीं, ये ऐसे होता रहेगा। और ये जो मोशन है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और वैसे भी आप लोगों को क्लियर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑब्जर्व किए गए हैं। यानी ये वाला कंडीशन क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अनस्टेबल। तो आप लोग भी अपने आप ध्यान रखिए, 180 डिग्री पर आएगा अनस्टेबल। और ये कंडीशन जो है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस कंडीशन इज अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इस चीज को एक जगह से और चेक कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा समझ करके फिजिक्स के हिसाब से समझा तो दिया है कि उस तरफ पलट जाएगा, ये नहीं पलटेगा, इधर एसएचएम करेगा। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखिए, आपके केमिस्ट्री टीचर्स भी अक्सर बताते रहते होंगे, जितनी कम एनर्जी उतनी बढ़िया स्टेबिलिटी। ह्यूमन लाइफ का भी ऐसा ही हाल है, जब बहुत कम एनर्जी हो जाती है एकदम बुढ़ापे में जाकर के बड़ा स्टेबल हो जाता है, जवानी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत अनस्टेबिलिटी रहती है। बिल्कुल ऐसा यहां पर भी है, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए उतनी कम एनर्जी। इस कंडीशन में अगर मैं P माइनस पीई कॉस थीटा लगाऊं तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट आएगा इस कंडीशन में वो जाएगा माइनस पीई, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है, तो यहां देखिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। और इस कंडीशन में अगर मैं लगाऊं तो हो जाएगा माइनस पीई इंटू -1, यानी पीई, ये हो गया पॉजिटिव। तो आप देखिए यहां एनर्जी ज्यादा है, वैसे भी अनस्टेबिलिटी है, यहां एनर्जी कम है, नेगेटिव में है, स्टेबिलिटी है। इसी बात को आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर रखना है। साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है और आप स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, स्लाइटली, तो ऑब्वियसली वो एसएचएम करेगा। जैसा एसएचएम मैं आपको शुरू में दिखा रहा था कि अगर ये मीन पोजीशन है, स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। अब ये जो ऐसे ऐसे होता रहेगा, इस मोशन का एसएचएम है अगर, तो टाइम पीरियड भी निकालना जरूरी है। आप खुद भी सोचो, अगर यहां देखो तो ये इनिशियली स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मैंने थीटा डिस्प्लेस किया, बाहर की ओर एंगल है, और टॉर्क आप जानते हो पी क्रॉस ई अंदर की ओर। यानी कि अगर इस केस के लिए मैं यहां पर देखूं तो टॉर्क जो है वो रीस्टोरिंग नेचर का है, टॉर्क इज रीस्टोरिंग, टॉर्क मेरे बच्चों रीस्टोरिंग नेचर का है। तो टाउ हो जाएगा पीई, और साइन थीटा की जगह साइन माइनस थीटा लिख रहा हूं, या यूं कह लो माइनस साइन थीटा। एक बार आपको टॉर्क पता चल गया, आप जानते हो कि इसमें अल्फा निकालना कोई टफ नहीं है। अल्फा हो जाएगा माइनस पीई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माइनस पीई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई। अब अगर एक बार अल्फा आ चुका है तो आप सभी लोग इस बात को समझ गए हैं कि टाइम पीरियड निकालना इज नॉट अ बिग डील नाउ। अब टाइम पीरियड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट फोकस हियर। इसी कंडीशन में टाइम पीरियड के लिए मैं जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी टेक अ न्यू पेज। एक अगले पेज पर इसी बात को आपको मैं बता देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो मुझे पता है टाउ आ गया है मेरा माइनस पीई साइन थीटा, अल्फा आ गया माइनस पीई साइन थीटा बाय आई। अब ये मत कहना ये कहां से आ गया, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अल्फा होता है टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं टाइम पीरियड जानता हूं, एंगुलर एसएचएम में होता है 2 पाई अंडर रूट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत लोग इस पर शायद फोकस नहीं करते होंगे, आपको ध्यान देना है। यह भी एक एक्सप्रेशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने किया थीटा का,
तो यहां पर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाय, अभी अभी आपने अल्फा निकाला, उसका मैग्नीट्यूड है पीई साइन थीटा बाय आई। अब आप कह रहे होंगे सर ये फिक्स टाइम तो है नहीं, ये साइन का फैक्टर है, साइन पर डिपेंड कर रहा है, तो कौन टाइम पीरियड सेम रहेगा, ये आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, टाइम पीरियड सेम रहेगा अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें। तो इफ डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं हम, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, बहुत ही हल्का सा, तो इसका मतलब थीटा तो स्मॉल होगा। अगर थीटा इज स्मॉल है तो आप लोग ये भी जानते हैं कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी यही वाला एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का कुछ ऐसा दिखने लगेगा, थीटा बाय पीई थीटा, और आई तो ऊपर चला गया है तो थीटा थीटा गेट कैंसल्ड, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। तो ये एक्सप्रेशन आ गया है जो कि एक कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें एक बात सोचने वाली है कि टाइम पीरियड तब फिक्स रहेगा इसका जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्लाइट हो। ऑल्दो ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन इस केस में या पेंडुलम के केस में भी आपने पढ़ा होगा, छोटे एम्पलीट्यूड्स में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है। तो ऐसे इसमें भी छोटे एम्पलीट्यूड में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई आएगा। आई अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 2ma² होगा, वो तो जो भी सिचुएशन में दिया जाएगा आप फिट करके टाइम पीरियड इसके ऑसिलेशन का निकाल सकते हैं कि ये कैसा ऑसिलेशन करेगा, उसका क्या टाइम पीरियड होगा। ये बातें हमें जाननी है, इन पर फोकस करना है। साथ साथ अगर हम इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखेंगे तो फिर कैसा रिजल्ट आएगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम जानने वाले हैं। आज की क्लास में हम केवल इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग इस बात पर फोकस करें जो हमने शुरू में देखी थी कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट पर, एक हमारे डाइपोल पर टॉर्क लगा, टॉर्क P क्रॉस E आया, हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाला, वो माइनस P डॉट E आया, और फिर उसी से हमने समझा कि दो तरीके के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ज्यादा एनर्जी, स्टेबल में कम एनर्जी, और अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा ये आया है कि हम लोग सीख गए कि अनस्टेबल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जिसका टाइम पीरियड ये फिक्स तभी आएगा जब स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इस पर क्या फोर्स लगता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज विजिट आवर चैनल द एग्जाम्पलर पॉइंट एंड कीप सब्सक्राइबिंग फील द फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।